بھارت کی جانب سے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جبر و استبداد، ظلم و بربریت اور ریاستی دہشت گردی کے 76 سال مکمل ہو گئے۔ کشمیر کی تاریخ کے سیاہ ترین دن 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف وادی پر غاصبانہ قبضہ کر کے نسل کشی کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جو آج تک جاری ہے۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں اب تک 2,37,000 سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ جماعت اسلامی نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف 29 اکتوبر کو اسلام آباد میں مارچ کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ہمیشہ اسلام کی مخالفت اور انبیاء کو شہید کیا۔ اسرائیل کے پارلیمنٹ پر جو نقشہ نصب ہے اس میں متعدد اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، اس لیے اس فتنے کو وہیں دبانا چاہیے۔ ملک میں بہت سے معاشی مسائل ہیں، ہر بچہ IMF کا مقروض ہے۔ 36 سال ملک پر جرنیلوں کی حکومت رہی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی انہی جرنیلوں کی پیداوار ہیں۔ ملک میں اگر اسلام نافذ ہوگا اور شریعت کا نفاذ ہوگا تو ملک معاشی طور پر مضبوط ہوگا۔ DG رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقار سے کرسچن کمیونٹی کے 7 رکنی وفد نے ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجر سندھ میں ملاقات کی۔ مذہبی تہواروں دیگر تقریبات پر سیکیورٹی سے متعلق تفصیلی گفتگو۔ DG رینجرز نے کہا کہ قیام پاکستان سے آج تک کرسچن کمیونٹی کی ہر شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات ہیں۔ مصطفی آباد کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ ڈاکو شہری حمزہ سے واردات کر کے فرار ہو رہے تھے کہ اطلاع پر پولیس نے تعاقب کیا۔ ملزمان نے پولیس اہلکاروں کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔ شناخت اب عابد، فیاض اور عرفان کے ناموں سے ہوئی ہے۔ جوہر آباد میں درینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، مرنے والے کی شناخت اشرف کے نام سے ہوئی۔ مقتول موٹر سائیکل پر عزیز کے ساتھ جا رہا تھا کہ ارشاد وغیرہ نے گولیاں برسا دی، ساتھ ہی بال بچ گیا۔ اور جلال پور بھٹیا میں بچوں کی لڑائی پر 4 بچوں کے باپ کو قتل کر دیا گیا۔ مرنے والے شخص کی شناخت مہدی حسن کے نام سے ہوئی۔ واقعہ نواحی گاؤں روپیکی میں پیش آیا ہے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسنین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ہری پور کے الیکشن پر امن ماحول میں مکمل ہو گئے۔ ڈاکٹر سجاد صدر، ڈاکٹر عتیق افضل جنرل سیکرٹری بن گئے، ڈاکٹر انعام اللہ جوائنٹ سیکرٹری، ڈاکٹر طاہر اقبال خان نائب صدر، جبکہ ڈاکٹر عرفہ کوکب سینئر نائب صدر منتخب۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ ہری پور DHQ ہاسپٹل میں پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے الیکشن پرامن طریقے سے مکمل ہو گئے۔ الیکشن میں ڈاکٹر سجاد احمد صدر، ڈاکٹر عتیق افضل ملک جنرل سیکرٹری، ڈاکٹر تنویر حسین بنگش سینئر وائس پریزیڈنٹ، ڈاکٹر طاہر اقبال خان وائس پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے۔
जबकि दीगर कैबिनेट में डॉक्टर इरफा कोकब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फीमेल, डॉक्टर इनामुल्लाह जॉइंट सेक्रेटरी, बिलाल इबासी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, डॉक्टर इजाज रहमतुल्लाह फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। जबकि इलेक्शन कमीशन के फराइज डॉक्टर सफदर, डॉक्टर नासिर और डॉक्टर रफीक तनोली ने अदा किए। इलेक्शन में डॉक्टर प्रोविंशियल एसोसिएशन के सूबाई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रेल शाह ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर रेल शाह का कहना था, आज हमारे हरिपुर डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में जो इलेक्शन का इनेकाद हुआ, ये बेसिकली जमहूरियत का हुस्न है कि आपको ये इख्तियार हो जो नीचे वर्कर्स है कि वो अपना लीडर खुद मुंतखब करें। इसका क्रेडिट जो है वो हमारे साथ जो मैं कहूँगा बचपन से रहे हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जिन्होंने अपनी जो पावर है वो ट्रांसफर की है नीचे लेवल पे और अपना जाननशीन मुकर्रर किया है। ये किसी की हार जीत नहीं है, ये पीडीए की जीत है जो आज इलेक्शन हुआ है। हम ये सब हमारे जो हम जितने भी आए हैं, डॉक्टर मुअज्जम साहब आए, जिया भाई आए, अयूब से आए, तो ये सब आपके लिए आए और आपकी जीत की खुशी मनाएंगे। दूसरी बात, आखिरी बात मैं कहूंगा, ये एसोसिएशंस किसी के खिलाफ नहीं होती। ये कोई महाज नहीं है कि हम किसी के खिलाफ लड़ने के लिए जंग पे या जिहाद पे निकल रहे हैं। ये एसोसिएशन सिर्फ अपने हुकूक की जंग लड़ने के लिए है। डॉक्टर रेल शाह का मजीद कहना था कि ये किसी की हार जीत नहीं है, बल्कि ये पीडीए की जीत है। ये जितने भी उम्मीदवार थे ये सब हमारे भाई हैं। ये एसोसिएशन किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये सिर्फ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अपने हुकूक की जंग लड़ने के लिए है। और आपको बताएं कि छाती का सरतान एक मूजी मर्ज है। बर वक्त तशखीस न होने से पाकिस्तान में सालाना 40,000 अमवात होती हैं। उगी में जरगा पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम डिग्री कॉलेज में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के बारे में वॉक का इनेकाद किया गया। तफसीलात उस्मान हारूनी की इस रिपोर्ट में। छाती का कैंसर ख़वातीन की जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा। मूजी मर्ज से आगाही के लिए हर साल अक्टूबर को आलमी सतह पर पिंक अक्टूबर के तौर पर मनाया जाता है। सरतान के मरीजों के हिसाब से पाकिस्तान का एशिया में पहला नंबर है। हर 8वीं खातून मुतासिर। छाती का कैंसर सालाना 40,000 ख़वातीन से ज़ायद जिंदगियां निगल लेता है। जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम डिग्री कॉलेज उगी में उसकी आगाही के लिए वाक़ का एहतमाम किया गया, जिसमें कॉलेज स्टाफ, तलबा और तालिबात, असिस्टेंट कमिश्नर उगी डॉक्टर अजरा शाहीन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वाक़ का मकसद छाती के सरतान से आगाही और बर वक्त इलाज के हवाले से आगाही फराहम करना था। इस मौका पर जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट के मेंबर उमर शहजाद ने तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। असिस्टेंट कमिश्नर उगी सलीम खान ने जिरगा पाकिस्तान की छाती के सरतान के हवाले से वाक़ को सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। आज ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये जो वाक़ और ये प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिरगा पाकिस्तान की तरफ से, मैं बहैसियत असिस्टेंट कमिश्नर उगी इस अच्छे काज को अप्रिशिएट करता हूँ। कोई भी अगर एक ऐसे अच्छे इनिशिएटिव लेगा जिस तरह जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट ने लिया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी हर पॉजिटिव काज के लिए सपोर्ट करेगी। और डिग्री कॉलेज उगी के प्रोफेसर इस्माइल ने जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट को कामयाब प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश की। तिबी माहिरीन का कहना है कि छाती का कैंसर जितना बड़ा खतरा है, उसके बचाव के लिए उतने ही बड़े इक़दाम की ज़रूरत भी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीन के साबिक वज़ीर आज़म ली का-चांग के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि पाकिस्तान आज एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुझे चीन के साबिक वज़ीर आज़म ली का-चांग के इंतकाल की खबर सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ। पाकिस्तान आज एक अजीम दोस्त से महरूम हो चुका है। ली का-चांग पाक चीन इक़्तिसादी और तज़वीराती ताल्लुकात के बारे में बहुत बड़े हामी थे। ली का-चांग एक विजनरी रहनुमा भी थे। सदर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ली का-चांग के ख़ानदान, चीनी अवाम और क़यादत से गम की इस घड़ी में ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़िले इंतज़ामिया मलीर की जानिब से स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से फुटबॉल मैच का इनेकाद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मलीर नवाब समीर लगारी और चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फातह टीम में इनामात भी तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी सिंध की खुसूसी हिदायत पर इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिले इंतजामिया मलीर की जानब से स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से शफी गोड मलीर में फुटबॉल मैच का इनेकाद हुआ।
स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रोग्राम में शफीउद्दीन फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल टीमों शफी 11 और महफूज 11 के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। महफूज 11 की टीम ने जीत अपने नाम कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मलिर नवाब समीर लगारी और चेयरमैन इब्राहिम इदरी टाउन नजीर अहमद भुट्टो बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि फुटबॉल का खेल बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल और मलिर के नौजवानों का पसंदीदा खेल है। खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से दूर रखा जा सकता है। इस मकसद के हुसूल के लिए इब्राहिम इदरी टाउन और जिले इंतजामिया मलिर की जानब से इस तरह के मजीद इवेंट कराए जाएंगे। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मजीद कहा कि मलिर की कदीम गोटों से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर कौमी टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जो मलिर की आवाम के लिए एजाज है। हम खेल के मैदानों की तामीर मरम्मत तज़ीनो आराइश और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के साथ उनकी माली मामलत के लिए फेस्टिवल मुनक्कद करा रहे हैं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन इब्राहिम इदरी टाउन रफीक दाऊदजत, म्यूनिसिपल कमिश्नर बाबुल अली मंगरानी ने खिलाड़ियों में नगद रकम और ट्रॉफी भी दी। और आपको बताएं कि डीजी रेंजर सिंह मेजर जनरल अजहर वकास से क्रिश्चियन कम्युनिटी के 7 रुकनी वफ्द ने हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर्स सिंह में मुलाकात की है। मजहबी त्यौहारों दीगर तकरीबात पर सिक्योरिटी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग में गुफ्तगू हुई है। डीजी रेंजर्स ने यह कहा कि क़याम पाकिस्तान से आज तक क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर शोबा जिंदगी में नुमाया खदमात हैं। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। क्रिश्चियन कम्युनिटी के 7 रुकनी वफ्द के अरकान ने हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का दौरा किया। वफद कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और दीगर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले सरबराहान और अफराद पर मुश्तमिल था। वफद के सरबराहान मुश्ताक भट्टू, चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल मिनॉरिटी अलायंस एंड फोकल पर्सन ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, बिशप बीनी मारियो ट्रेनोस, आर्च बिशप ऑफ कराची और दीगर वफ्द के अरकान ने डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास से मुलाकात की। इस मौके पर डीजी रेंजर सिंध का कहना था कि क़याम पाकिस्तान से आज तक क्रिश्चियन कम्युनिटी के हर शोबे जिंदगी में नुमाया खिदमत हैं, खुसूसन सेहत, तालीम और दीगर शोबों में क्रिश्चियन कम्युनिटी का किरदार काबिल सताइश है और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सब ने मिलजुल कर अपना किरदार अदा करना है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के सरबराहान ने पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानब से शहर में अमन अमान और अक़लियतों के मजहबी त्योहारों के दौरान सिक्योरिटी के इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। भारतीय फौज ने LOC के जफरवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। जवाबी फायरिंग से भारतीय बॉर्डर फोर्स सिक्योरिटी के कुछ एहलकार भी जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रात जफरवाल सेक्टर में पहले क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अली असगर भट्टी से। जी असगर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि इंडिया हमेशा बिना हरकतें पार करता रहता है। इसी तरीके से भारत ने पाक फौज के जफरवाल जो सेक्टर है वहां पर विशाल फायरिंग की। भारत ने जुमे रात को जफरवाल के सेक्टर में पहले तो ड्रोन से हमला किया गया, दरअंदाजी की कोशिश की, जिसमें पाक फौज के जवानों ने उस पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसको रोका गया। पाकिस्तान की फोर्सेज इसके बाद भारतीय फोर्सेज ने जफरवाल के सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की, जो शहरी इलाके थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। पाक फौज की विशाल फायरिंग से दुकानदारों, घरों के और बच्चों को काफी जख्मी किया गया और ये हमेशा बुज़दिलाना हरकतें करता रहता है। जवाबी फायरिंग से पाकिस्तान भारत के फोर्सेज ने नुकसान उठाना पड़ा और पाक फौज के जख्मी ये भी इतला आई है कि फौज के जवानों ने जख्मी भी किया है। और भारत की तरफ की जानब से भारतीय जासूसों को सजाए मौत देने की वजह से बैनुल-अक़वामी हुर्मत की वजह से हो सकती है। कतर में भारतीय जासूसों की सजाए मौत से कबल भारत में कनाडा में अपनी खुफिया एजेंसी रा के जानब से सिखों की टारगेट करने की वजह भी उठाई जा सकती है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की जानब से 27 अक्टूबर की यौम सियाह भरपूर तरीके से मनाने की वजह भी हो सकती है। दुनिया भर की कश्मीरी सिक्योरिटी फोर्सेज म्यूनिसिपलिटी के मसाइल से हटाने के लिए रोज ब रोज मिलाशेल इत्तेशाल फायरिंग करता रहता है। बैनुल-अक़वामी सफारती सतह पे खुद को तनहा होते हुए देख के भारत की इंतहा पसंदी की हुकूमत ने पाकिस्तान के जफरवाल सेक्टर में बिलाशेल फायरिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। भारत को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक बहादुर फौज है और मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। जी, बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी, आप अपडेट कर रहे थे। पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 270 रन स्कोर किए। 271 रन का
ہدف دیا ہے جنوبی افریقہ کو پاکستان نے آج کا میچ جیتنے کے لیے، اور آج کے اس میچ میں شاداب اور بنو سے آپ کو خبر دیں کہ کمشنر بنو نے مربت کینال میں پانی کے بہاؤ کو جلد ممکن بنانے کا وعدہ پورے کر دیا ہے۔ کینال میں تقریباً 22 سال بعد 850 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ 69 کلومیٹر لمبائی پر محیط مربت کینال میں پانی چھوڑنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات بھی کیے گئے۔ کے لیے کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 271 رنز کا ہدف دیا ہے۔ شاداب خان اور سعود اور آپ کو بتائیں کہ کشمور میں امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر خراب ہونے لگی۔ ڈاکوں نے بھرے بازار میں ہندو تاجر کو لوٹ لیا۔ تاجر راجیش کمار سے لاکھوں کی نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار۔ ڈکیتی واردات کے بعد اناج منڈی ایسوسی ایشن اور ہندو برادری کی جانب سے ڈسٹرکٹ پریس کلب کشمور کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ہدف دیا ہے۔ اس میچ کے دوران شاداب خان اور سعود شکیل کے درمیان 84 رنز کی میرپور خاص میں میڈیکل یونیورسٹی کی تعمیر نامکمل، مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء سول سوسائٹی کی سٹی پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی کی قیادت جنید لغاری، نعمان پنہور اور داؤد کے علاوہ واجد لغاری اور لالا اظہر نے کی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور عبدالغفار لغاری سے۔ میرپور خاص سے وابستہ مختلف طلباء اور سول سوسائٹی کی جانب سے گلستان بلدیہ سے سٹی پریس کلب میرپور خاص تک ایک شاندار ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت جنید لغاری، نعمان پکڑ، دودو پاور نے کی۔ مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرپور خاص ڈویژن کی آبادی 45 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس میں نوجوان طبقہ کثیر تعداد میں موجود ہے، مگر افسوس میرپور خاص ڈویژن میں کوئی بھی مکمل میڈیکل کالج یا انجینئر کالج موجود نہیں ہے اور نہ ہی مکمل یونیورسٹی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مگر اب تک اس کا کام نامکمل ہے، جس کے باعث ہزاروں طلباء ایسے ہیں کالج لیول کی پڑھائی کے بعد وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور سندھ کے دیگر ڈویژن میں 3 سے 4 یونیورسٹیاں موجود ہیں، مگر واحد میرپور خاص ڈویژن ہے جسے نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہاں کے طلباء ٹنو جام یا جام شہر سے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، مگر بس پوائنٹ چل رہی ہیں، ان میں کرایہ تو پورا وصول کیا ہے مگر سہولتوں کا فقدان ہے۔ متاثر طلباء نے مطالبہ کیا ہے کہ میرپور خاص کو میڈیکل کالج، انجینئر کالج اور آپ کو بتائیں کہ پنگریو انتظامیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ تنخواہ کے لیے احتجاج کرنے والے بلدیہ ملازمین کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے۔ گلیوں میں گندگی، گٹروں کا گندا پانی رقص کرنے لگا۔ مزید جانتے ہیں رفاقت علی ارائن کی اس رپورٹ میں۔ پنگریو میں ٹاؤن کمیٹی کے ملازمین نے اپنی تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیتے ہوئے ملازمین نے کہا کہ درست تنخواہیں نہیں دی جا رہی، ہم فاقوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ٹاؤن ملازمین کے احتجاج کی وجہ سے پنگریو شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے، گلیاں گٹر نالا بن گئیں۔ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انصاف یہ مل رہا ہے کہ ہمارے مطالبات پورے کرنے کی بجائے، ہمیں پگاریں دینے کی بجائے یہ شوک آؤٹ نوٹس جاری کیے ہیں۔ 2 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی اور 3 مہینے سے ہمیں ڈفرینس نہیں دیا گیا، اور ہم فاقہ کشی کی ماحول میں جو گزار رہے ہیں زندگی اپنی، کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو برائے مہربانی ہم بہت ہی فاقہ کشی کی جو زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ ہمارے کو تنخواہ دی جائے ٹائم سے تو ہم اپنا کام کریں گے، ہمیں تنخواہ نہیں ملے گی، ہمارے حقوق ہی نہیں ملے گی تو ہم کیسے کام کریں گے؟ اگر ہم اپنے حقوق مانگنے کے لیے گئے تو اس کی بجائے ہمیں یہ نوٹس ملا ہے، شوکات نوٹس۔ اور یہاں وقت ہوا شارٹ بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 271 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔ کپتان بابر اعظم 50 اور سعود شکیل 52 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاداب خان 43، محمد رضوان 31، افتخار احمد 21 اور امام الحق 12 رنز ہی بنا سکے۔ پاکستان کی ٹیم 46.4 اوورز میں 270 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 271 رنز کا ہدف دے دیا۔ کپتان بابر اعظم 50 اور سعود شکیل 52 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ شاداب خان 43، محمد رضوان 31، افتخار احمد 21 اور امام الحق 12 رنز ہی بنا سکے۔ پاکستان کی ٹیم 46.4 اوورز میں 270 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक जवाब जमा करवाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। नई हल्का बंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी। आपको अपडेट करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक जवाब जमा करवाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर चुका। नई हल्का बंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी। अपडेट करते चले आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक जवाब जमा करवाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। नई हल्का बंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी। आपको बताते चलें इस खबर के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक जवाब जमा करवाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद सीनियर रिपोर्टर उमर अवैस करदीजी से। जी उमर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास, इस हवाले से क्या कहेंगे? उमर अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस खबर के हवाले से? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी जो है 2024 की तारीख दे दी गई है। दराए इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन 2 दिन के बाद तहरीरी तौर पर भी आगाह कर देगा। हुकूमती दराए का बताना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू कर देंगी और इलेक्शन कमीशन काफी वक्त से पहले भी ये तैयारियां शुरू कर रखी हुई थी। 2 रोज कबल डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर ममलकत है, उन्होंने अपने एक निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इस खदशे का इजहार किया था कि उन्हें जनवरी 2024 में आम इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज ज़ाती बयान जारी कर दिया था कि हम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होते ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानब से सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का जो मुल्क में आम इंतखाबात से मुतल्लिक बयान था उसको रद्द करते हुए तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई सच्चाई नहीं थी। इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक ये भी कहा गया है कि हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। 30 और 31 अक्टूबर से एतराज़ात पर समाअत और 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। हल्का बंदियों की इशाअत के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानब से जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया है। ताहाल इस हवाले से कोई तारीख, हतमी तारीख जो है वो अभी तक सामने नहीं आ सकी। आम इंतखाबात से मुतल्लिक मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल कई महीनों से जारी है। सियासी जमातों की मुख्तलिफ आरा भी इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर का सबब नजर आती रही है, लेकिन अब एक अहम खबर इलेक्शन कमीशन की जानब से सामने आई है कि मुल्क में जो जनवरी 2024 में इंतखाबात का महीना है और जनवरी में ही इंतखाबात मुतवक्का हैं। जी बहुत शुक्रिया उमर अवैस करदीजी, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि STDC के CEO सलीम शेख की ज़ेर सदारत अहम इजलास 61वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स वाप्टा के ज़रिए तरबियत अफसरान की शिरकत, कंपनी के कारोबारी ऑपरेशन, सिंध की तवानाई वसाइल के बारे में ब्रीफिंग। वाप्टा स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल एनबारुल हक, DG ट्रेनिंग सनाउल्लाह और सीनियर इंस्ट्रक्टर वकास अहमद की शिरकत। आपको बताएं कि STDC के CEO सलीम शेख की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। 61वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स वाप्टा के ज़रिए तरबियत अफसरान की शिरकत, कंपनी के कारोबारी ऑपरेशन, सिंध के तवानाई वसाइल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। रहीम यार खान में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। सरदारों, वडीरों और पुलिस ने जोड़े पर जुल्म की इंतहा कर दी। तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जोड़े की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से मज़ीद जानते हैं
अब्दुल गफ्फार मेहर की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में पसंद की शादी वाला जोड़ा गैर महफूज हो गया। रहीम यार खान पुलिस ने जोड़े को तोहफ़्ज़ देने की बजाय वडेरों के हुक्म पर झूठे मुकदमात बनाने के साथ हरासा करना शुरू कर दिया। पसंद की शादी करने वाली दड़ी सांगी रहीम यार खान की सना हुसैन ने शोहर मंसूर गुपांग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वडेरों ने पंचायती फैसले में सुमेरा को वर्नी करने का हुक्म दे दिया है। पंचायती फैसले पर अमल दरामद न करने पर कत्ल और अगवा की धमकियां मिल रही हैं। वडेरों सरदार याकूब सलीम बशीर गफूर गुपांग से शदीद खतरा है। सना हुसैन और मंसूर गुपांग ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आला हुकाम से फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने IG पंजाब वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जमात इस्लामी ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि यहूदियों ने हमेशा इस्लाम की मुखालफत और अंबिया को शहीद किया। इसराइल के पार्लियामेंट पर जो नक्शा नस्ब है उसमें मुतादिद इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं, इसलिए इस फितने को वहीं दबाना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त दुनिया में दो बड़े फितने यहूदियत और कादियानियत में कादियानियत अंग्रेज का लगाया हुआ पौधा है जो उसके लिए काम करता है। मिर्जा गुलाम अहमद काजिब और झूठा है। कादियानी जब किसी जगह खुद को मुसलमान कहलाता है तो वो आईने पाकिस्तान की मुखालफत करता है। इस दुनिया में इस वक्त दो बड़े फितने हैं, एक यहूदियत का फितना है और दूसरा कादियानियत का। और कादियानियत का फितना बाकायदा अंग्रेज का ईजाद करदा है और अंग्रेज ने इस पौधे को इसलिए इस सरजमीन पर लगाया था ताकि यहाँ के मुसलमान अपने दीन के हवाले से गुमराह हो जाए। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने नबूवत का दावा करके साबित किया कि वो इस ज़माने का सबसे बड़ा दज्जाल है, इसलिए कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने आना नहीं है। और जो नबूवत का दावा करता है या नबूवत में शिरकत का ऐलान करता है वो काज़िब है, वो झूठा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आईन में इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार देकर एक मुस्तकिल फैसला किया है कि ये गैर मुस्लिम है, अक़लियत की हैसियत से तो रह सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान के तौर पर अपने आप को जब वो मुतारिफ़ कराते हैं तो हकीकत में वो हमारी आईन से बगावत करता है, वो जमहूर के फैसले को नहीं मानता है। तो इस चिनोट को ये एक बड़ा एजाज़ हासिल है कि हमेशा यहाँ के लोगों ने फितना कादियानियत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई है, लोगों को बेदार किया है और आज भी ये फितना दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अपने आप। तरिंदा मोहम्मद पनाह में डाकुओं और चोरों का राज, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। पुलिस शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात भी उठने लगे। इस हवाले से देखते हैं गुलाम अली की ये रिपोर्ट। थाना तरिंदा मोहम्मद पनाह की हदूद में जराइम पेशा अनासिर दंदन आने लगे। शहर और गिरदनवा में डाकुओं और चोरों का राज। आए रोज डकैती और चोरी की वारदातें मामूल बन गईं। गुज़श्ता रोज शेख अब्दुल सत्तार नामी शहरी के घर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई। मज़ामत पर डाकू ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। नकदी 65,000, 40,000 मालियत का मोबाइल फोन और गंदम के 3 बोरे ले उड़े। रात गए थाना तरिंदा मोहम्मद पनाह से चंद मिनट के फासले पर चौधरी इकबाल नामी ताजर की दुकान की छत काट कर चोर 1000 रुपए मालियत का सामान ले उड़े। पुलिस की दिन रात गश्त जारी, मगर जराइम रुकने का नाम नहीं ले रहे। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। पुलिस शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात जन्म लेने लगे हैं। शहरियों ने DPO रहीम यार खान और RPO बहावलपुर से नोटिस लेकर शहर और गिरदनवा से डाकू राज खत्म करके शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मजहर हुसैन के साथ गुलाम अली को। गोजरा बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम बार रूम में महफिल मिलाद के इनेकाद किया गया। सदर बार तोकीर अशरफ खान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रहमान बोदला, जज मियाँ जावेद अकरम, जुबैर गौरी, हाफिज रिजवान, सिविल जज आबिद इस्लाम, उस्मान अकरम, मोहम्मद अली खान और दीगर ने शिरकत की। कश्मीर हमारा है, ये दुनिया को बताना है। 27 अक्टूबर ब्लैक डे कश्मीर की रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस टांग से निकाली गई।
जिसमें सियासी और समाजी और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों लोगों ने भरपूर शिरकत की। टांग से आदम खान कुंडी रिपोर्ट कर रहे हैं। आज टांग में ब्लैक डे कश्मीर के हवाले से मकबूजा कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। मुकर्रिरीन का कहना था कि 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया की फौज ने मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जा किया, इसलिए आज तमाम पाकिस्तान में ब्लैक डे कश्मीर मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर टांग का कहना था 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी फौजियों ने कश्मीर पर हमला करके वहाँ के अवाम, वहाँ के लोगों की आज़ादी छीन ली, और यही वो मौका था जब आप देखते हैं कि यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त कबायली पट्टी थी, कबायली इलाकों से हमारे ये कबायली उधर गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाके को भी आज़ाद करवा लिया। दुनिया में इस रोई ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है, और जिस तरह हमारे भाई ने फरमाया कि ये एक शेर में कि कश्मीर जो है ये जन्नत है, और जन्नत ये कभी भी काफिर को नहीं मिल सकती। कश्मीर हमारा है, ये दुनिया को बताना है। मुल्क भर की तरह और सत्ता मोहम्मद में भी भारत की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम के 76 साल मुकम्मल होने पर यौम स्या मनाया गया, और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मेयर और सत्ता मोहम्मद और डिप्टी मेयर की क़यादत में रैली भी निकाली गई। मुकर्रिरीन का कहना था कि अक़वाम आलम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादी दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। वेले दी वंड वटां दी सांझ साहिवाल राजरी रिकॉर्ड सेंटर के तेरे एहतमाम वर्कशॉप का इनेकाद कमिश्नर शुएब इकबाल सईद ने कहा कि महकमा माल में अराजी रिकॉर्ड के मुश्तरका खातों की तकसीम का मनसूबा है, जा मुकदमाबाजी और लड़ाई झगड़े रोकने का एक इनकलाबी मनसूबा है, जिस पर अमल दरामद से हर मालिक का क्यूट नंबर अलग होगा और वो अपनी मलकियती जमीन का अकेला मालिक होगा। और खबर आपको दें कि मीरपुर माथेलो में 27 अक्टूबर यौम स्या और कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती का दिन मनाया गया। जिले के सबसे बड़े स्कूल के सैकड़ों तलबा की कश्मीरी अवाम के हक में रैली। तालिबा ने हाथ में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। नाज़रीन, मुस्तफ़ाबाद की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू शहरी हमजा से वारदात करके फरार हो रहे थे कि इत्तला पर पुलिस ने ताक़ुब किया। मुलज़मान ने पुलिस एहलकारों को देखते ही वायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वतन अजीज के लिए जान का नजराना देने वाले शहीद कांस्टेबल मोहम्मद शहजाद सलीम की आज बरसी। डीएसपी हेडक्वार्टर मसूद अल हक भट्टी की कब्र पर हाजिरी फातिहा खानी फूलों की चादर चढ़ाई गई। पुलिस के चाका चौमत दस्ते ने सलामी भी पेश की। मजीद जानते हैं खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक के अहकामात की रोशनी में क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अपनी जान का नजराना देने वाले शहीद कांस्टेबल मोहम्मद शहजाद सलीम की बरसी के मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर मसूद अल हक भट्टी ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। इसी दौरान खानेवाल पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने शहीद शहजाद सलीम की कब्र पर सलामी पेश की। डीएसपी हेडक्वार्टर मसूद अल हक भट्टी शहीद के लवाहिकीन को दिलासा दिया और शहीद के बच्चों पर दस्ते शफकत रखा। इस हवाले से डीपीओ राना उमर फारूक ने कहा कि शहदाए पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के कारनामे सुनहरी तारीख का हिस्सा हैं, जो नए आने वाले पुलिस अफसरान और जवानों के मिशले राह हैं। हम आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। शहीद शहजाद सलीम की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा, जो 15 की कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए क्रिमिनल की गिरफ्तारी के दौरान फायर लगने से शहीद हो गए थे। कैमरामैन अल्ताफ भट्टी के साथ खालिद चौधरी के। जोहराबाद में दरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया। मरने वाले की शिनाख्त अशरफ के नाम से हो गई। मकतूल मोटरसाइकिल पर अजीज के साथ जा रहा था कि अरशाद वगैरह ने गोलियां बरसा दी। अवाम को दहलीज पर इंसाफ की फराहमी का मिशन। डीपीओ टोबाटेक सिंह सईद करार हुसैन की गोजरा के थाना
सदर में खुली कचहरी, शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। DPO का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद आवाम को मौका पर इंसाफ फराहम करना है। और आपको बताएं कि मरकजी मुस्लिम लीग सहजवाल का इजलास अहदेदारों का चुनाव किया गया। सदर चौधरी अकबर गुज्जर, सीनियर नायब सदर डॉक्टर मलिक नवीद, नायब सदर मियाँ लियाकत अली, जनरल सेक्रेटरी मियाँ नवीद अशरफ, जॉइंट सेक्रेटरी मलिक अलादित्ता, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मियाँ असलम महबूब ने शिरकत की। जलालपुर भटिया में बच्चों की लड़ाई पर 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त मेहदी हसन के नाम से हुई है। वाकया नवाही गांव में पेश आया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अकाड़ा 5 लाख की आबादी का इंदराज करने वाली 14L यूनियन काउंसिल की इमारत खस्ता हाली का शिकार। यूनियन काउंसिल में सड़क से नीचे निकासी आग की सहूलत न होने की वजह और बारिश से मुतादिद बार रिकॉर्ड भी पानी की नजर हो चुका है। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा में 3 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल 5 लाख की आबादी का इंदराज करने वाली 14L यूनियन काउंसिल की बिल्डिंग शदीद खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। यूनियन काउंसिल मेन सड़क से नीचे और निकासी आप की सहूलत न होने की वजह से बारिश और सीवरेज के पानी से मुतअद्दिद बार रिकॉर्ड भी पानी के नजर हो चुका है। बिल्डिंग इस हद तक खस्ता हाल हो चुकी है कि बिल्डिंग में जगह जगह खड्डे और दरारें पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। अहले इलाका का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को इसकी तमीर का कहा, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो सकी। इंतजामिया इस बात को सीरियस नहीं ले रही। यूनियन काउंसिल हजारों रुपए माहाना कमाकर गवर्नमेंट के फंड में जमा करवा रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रही। बिल्डिंग में पानी की निकासी का भी कोई इंतजाम नहीं। बिल्डिंग सड़क से नीचे होने की वजह से गटरों का पानी भी यूनियन काउंसिल के अंदर ही खड़ा रहता है। बारिश के पानी भी पूरी यूनियन काउंसिल की बिल्डिंग को डुबो देता है। यूनियन काउंसिल मेन सड़क से नीचे होने की वजह से सड़क का सारा पानी भी यूनियन काउंसिल के अंदर ही जमा हो जाता है, जिससे यूनियन काउंसिल नदी नालों का मंजर पेश कर रही होती है और मुतअद्दिद बार इसी पानी की वजह से यूनियन। हरुणाबाद तहसील ऑफिस और रजिस्ट्री ब्रांच में टाउट माफिया ने ढेरे जमा लिए। तहसील इंतजामिया टाउट माफी के आगे बेबस की तस्वीर बन गई है। अवामी समाजी हल्कों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा। मज़ीद जानते हैं अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद की रजिस्ट्री ब्रांच में टाउट माफिया ने पंजे गाड़ लिए। टाउट माफिया मुख्तलिफ हीलों वसीलों से हर आने वाले साइलिन को लूटने लगे और दूसरी जानब सरकारी मुलाजिमीन को भी ब्लैकमेल करके भुत्ताखोरी करने लगे। टाउट माफिया प्लाट की रजिस्ट्री और अराजी के इंतकाल की मद में रजिस्ट्री ऑफिस आने वाले साइलिन को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जबकि टाउट माफिया का काम ना करने पर सरकारी मुलाजिमीन को भी मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल किया जाता है। हम लोग तहसील ऑफिस में किसी भी काम के लिए आएँ तो सबसे पहले टाउट माफिया हमें घेर लेता है ताकि वो अपने ज़रिए से काम ले सके। तहसील ऑफिस में चट्टी दलाल माफिया इतना तकड़ा है कि आला अफसरान उसके आगे बेबस हैं। टाउट माफिया शेड्यूल रेट की मद में पटवारियों को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए के हुकूमती टैक्स कम करवाते हैं और फिर पूरी तैयार इमारत को खाली प्लाट में तब्दील करके इनकी रजिस्ट्री के लिए सरतोड़ कोशिशें करते हैं, जबकि प्लाट मालकान शेड्यूल रेट लगने के बावजूद इन टाउट माफिया की वजह से सस्ती रजिस्ट्री से महरूम रहते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से दर्दमंदाना अपील करते हुए रजिस्ट्री ब्रांच को टाउट माफिया के चुंगल से आज़ाद करवाने के साथ साथ टाउट माफिया का दाखिला भी ममनू किए जाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। डीजी खान में 4 रोज़ा थल डीजर्ट जीप रैली की तैयारियां शुरू। 9 से 12 नवंबर तक होने वाली रैली के लिए 3 अजला मुजफ्फरगढ़, लइचा और कोटादू में 200 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार किया जाएगा। मुल्क भर से मर्द और खवातीन 100 से ज्यादा ड्राइवर्स की शिरकत मुतवक्की। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद अली मेहरान की रिपोर्ट। डीजी खान डिवीजन में 4 रोजा थल डेजर्ट जीप रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई। कमिश्नर डेराजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और जनरल मैनेजर TDCP वाजिद अर्जमान जिया ने मीडिया से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 4 रोजा जीप रैली 9 से 12 नवंबर तक होगी। डिवीजन के लिए मोटर स्पोर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जिससे हमारी सकाफत, टूरिज़म और हमारी जो सियाहों की तफरीह का बाइस भी है, इलाके के लिए डेवलपमेंट का बाइस भी है। और
हर साल ये रैली पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। मुजफ्फरगढ़, लिया और कोटा दो अजला में 200 किलोमीटर तवील ट्रैक्स बना दिया गया है। 11 कैटेगरी के मुख्तलिफ मुकाबले, सकाफती मेला और दीगर प्रोग्राम होंगे। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि हाल जीप रैली डीजी खान डिवीजन की पहचान है। तारीखी जीप रैली के ऐसा इकदाम किए जाएंगे। सिक्योरिटी और सहूलियात की बेहतरी के लिए तमाम महकमे मिलकर काम करेंगे। किसी भी एमरजेंसी निपटने के लिए मुमकिन इकदाम भी किए जाएंगे। कैमरामैन नासिर। साहिवाल के नवाही इलाके 63 GD में अराजी तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। एक शख्स जहाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी। मकतूल की शनाख्त इमरान के नाम से हुई है। लुडन के नवाही इलाके मियाँ हाकम में दारा बराए सनफी शाउर और इंसाफी तरक्की आगाही पाकिस्तान और WHH पाकिस्तान के इश्तराक से सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आगाही इरफान सयाल ने बताया कि इस इक़दाम का बुनियादी मकसद सैलाब ज़दा इलाकों में रहने वाले अफराद को दरपेश खतरात को कम करना था। रेलवे स्टेशन मुबारकपुर भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। सहूलियात का फुकदान अपने इंतहा का पहुंच चुका। क्लास 2 के दर्जे में होने के बावजूद पीने का पानी, ना ही बाथरूम्स और ना ही कैंटीन का तस्वुर। दीगर मसाइल ने रेलवे स्टेशन मुबारकपुर की खस्ता हाली को तारीखी बना रखा है। मज़ीद जानते हैं मलिक अतीक लॉन्ग की इस रिपोर्ट में। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर 3 पैसेंजर ट्रेन का स्टाफ मुकर्रर है मगर सहूलतें सिफर। हर आने वाली हुकूमत ने रेलवे स्टेशन की मुरम्मत के लिए सब्ज बागात दिखाए मगर सब ख्वाब निकले। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन क्लास 2 के दर्जे में होने के बावजूद रेलवे स्टेशन पर ना कोई सफाई का इंतज़ाम है और ना ही साफ पानी पीने का इंतज़ाम है। इंतजार गाह में बैठने तक एक कमरा मुयसर नहीं। पुरसाने हाल कह नहीं साडा ना लैटरिन का इंतजाम है ना इतना फरसेंगे फरस बनया है ते तरक्की करते ही को क्लास BH कीता है लेकिन बी का कोई असर नजर नहीं आते। कोई तरक्की भी की हुई है ते मेहरबानी करते साडे जेड़ा ना रेलवे हुकाम को अपील करे ना बार बार अपील। मुसाफिरों को गर्मियों में शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता है। बैठने के लिए बेंच भी टूट फूट चुके हैं। शनियोड पुलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल। GP ऑफिस में उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट तकसीम करने के हवाले से तकरीब का इन्नेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने असफंदियार बुखारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में हफ्ता सेहत का इफ्तिताह कर दिया। DC अटक ने हफ्ता सेहत के हवाले से लगाए गए मुख्तलिफ काउंटर का मुआयना किया। MS डॉक्टर जवाद इलाही ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हफ्ता सेहत में मरीजों के इलाज मुआलजे के साथ साथ फ्री लेबॉर्ट्री की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। और आपको बताएं कि चूनिया में डाकू दिन दहाड़े वारदातें करने लगे हैं। पुलिस ने मुल्ज़मान के सामने घुटने टेक दिए। डाकू ने दिन दहाड़े शहरी को लूट लिया। चौधरी जुबैर आजम अपने घर रूसा टिब्बा जा रहा था कि चौकी बाईपास पर डाकू ने जबरदस्ती रोक कर लूट लिया। पुलिस हस्ब रिवायत ताखीर से पहुंची। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से शहरियों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। और आपको बताएं कि निगरान विफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने पिम्स अस्पताल में MRI मशीन का इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हिबा बासी की इस रिपोर्ट। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने आज पिम्स अस्पताल में MRI मशीन का इफ्तिताह किया जिसमें अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने भी शिरकत की। डॉक्टर नदीम जान का कहना था कि आज एक बहुत बड़ा संग मील अबूर किया। ओहदा संभालने के 3 दिन बाद पिम्स में सरप्राइज विजिट भी किया था। हमने ये फैसला किया था कि अगर डेडलाइन में ताखीर हुई तो अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर डेडलाइन में ताखीर होती तो कानून के मुताबिक जो सजा होती वो देनी थी। पिम्स हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है। वापडा हरुणाबाद ने बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर TMA के कनेक्शन काट दिए। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद से फौरी वाटर सप्लाई की बहाली का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि घरों में पानी की अशद जरूरत है। जलालपुर पीरवाला में मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इंतजामिया की जानिब से रैली भी निकाली गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा शहजाद अहमद।
ملک بھر کی طرح جلال پور پیر والا میں بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بربریت کے خلاف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے فلیکس اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیریوں پر بھارت کی جانب سے جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ اب بند ہونے چاہیے۔ عالمی برادری اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ جانتے ہیں آپ کے 27 اکتوبر کو 1947 میں انڈیا نے اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھی اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غاصبانہ طور پر کشمیر پہ قبضہ کر لیا تھا، جس کو ہم بلیک ڈے کے طور پر مناتے ہیں، اور اس میں ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہماری عوام، پاکستانی عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور ان کی جو جنگ ہے، جدوجہد کی آزادی کی جنگ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جب تک وہ کشمیر کا غاصبانہ قبضہ انڈیا نہیں چھوڑتا ہم اس جنگ میں ان کے ساتھ شامل ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ کشمیر ہمارا ہے اور اس کی آزادی تک ہم جو ہے پوری دنیا کے مسلمان وہ جنگ لڑتے رہیں گے، جہاں تک ہو سکے گا ہم لڑتے رہیں گے اور اس کا حصول اسے ضروری بنائیں گے، اور انشاءاللہ۔ ریلی میونسپل کمیٹی سے شروع ہو کر اللہ والا چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں انتظامیہ کے ساتھ ساتھ شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خواہش شہزاد احمد، کوہ نور نیوز، جلال پور۔ بنو کے عوام کے لیے اچھی خبر، 22 سال بعد نہر مروت کینال میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ شہریوں اور کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فدا محمد خان کی اس رپورٹ۔ آج مروت کینال میں کم و بیش 22 سال بعد 850 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ 69 کلومیٹر لمبائی پر محیط مروت کینال میں پانی چھوڑنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے تاکہ گندم و دیگر فصلوں کی بروقت آبپاشی ہو سکے۔ پورے بنو ڈویژن میں خاص کر لکی مروت اور سب ڈویژن وزیر بیٹنی کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے گئے۔ مروت کینال کے دیرینہ مطالبے کو پورا ہونے سے ضلع لکی مروت اور ضلع بنو میں زرعی انقلاب یقینی ہو چکا ہے۔ مروت کینال میں چھوڑے گئے پانی کے بہاؤ سے کاشتکاروں اور زمینداروں کو اربوں روپے آمدنی کی فصل ہوگی۔ بنو ڈویژن میں مروت کینال بڑے منصوبوں میں ایک تھا جو عرصہ دراز سے التوا کا شکار تھا۔ باران ڈیم رائزنگ اور مروت کینال پر اربوں روپے کا منصوبہ 2018 میں شروع کیا گیا تھا جو 2023 کے مقررہ مطلوبہ وقت کے اندر پایہ تکمیل کو پہنچا۔ مروت کینال سے ضلع بنو اور لکی مروت کی 1,70,000 ایکڑ کا وسیع رقبہ سیراب ہو کر قابل کاشت ہوگا۔ یاد رہے کہ 8 اکتوبر کو کمشنر بنو ڈویژن پرویز سبتخیل نے ذاتی طور پر کمانڈر 116 بریگیڈ محمد طیب اور ریجنل پولیس آفیسر قاسم علی خان سمیت باران ڈیم رائزنگ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق ملیشین وزیر اعظم اور جدید ملیشیا کے بانی مہاتیر محمد نے ایک بار پھر مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھا دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق ملیشین وزیر اعظم اور جدید ملیشیا کے بانی مہاتیر محمد نے ایک بار پھر مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھا دی۔ جموں کشمیر کی معصوم عوام پر بھارتی جبر و تسلط کا سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ ڈی پی او پاک پتن طارق ولایت کی سربراہی میں پولیس کا کریک ڈاؤن، 2 بین الصوبائی ڈکیٹ گینگ کا گرفتار کے لیے گئے۔ بھاری مقدار میں طلائی زیورات اور 1.5 کروڑ روپے کا سامان بھی برآمد کر لیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن میڈم شاہدہ نورین نے تھانہ چک بیدی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ڈاکو سنگین نوعیت کی وارداتیں کرتے تھے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی کے ضلع ملیر میں ریلیاں اور تقریبات، شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ 27 اکتوبر کی مناسبت سے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح ضلع ملیر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں اور تقریبات منعقد ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر بن قاسم کی سربراہی میں قومی شاہراہ سے ڈسٹرکٹ پریس کلب ملیر تک ریلی نکالی گئی۔ دوسری جانب ضلع ملیر کے تینوں ٹاؤن کمیٹیز کی جانب سے الگ الگ ریلیاں نکالی گئیں۔ ملیر کے فلاحی ادارے SOS کی جانب سے بھی شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں اساتذہ، طلباء سمیت سماجی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شہریوں نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور سبز ہلالی پرچم سمیت کشمیر کا جھنڈا بھی لہرایا اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔
नाजरीन आपको बताएं कि भारतीय मज़ालिम के खिलाफ कराची में वॉक का तमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अहमद अली सदीकी ने की। ज़िले इंतज़ामिया, तलबा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस और पोलियो वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं फौजिया बेग की इस रिपोर्ट में। कराची में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ऑफिस में कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अहमद अली सिद्दीकी की सरबराही में वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में जिले इंतजामिया, स्कूल के बच्चे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस, पोलियो वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आलमी बिरादरी को पाकिस्तान के हवाले से ये बात बतौर खास पेश नजर रखनी होगी कि कश्मीर के सिलसिले पर पाकिस्तान एक फरीक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को फरीक माना है। अब अगर कश्मीर में इंसानों के साथ जुल्म रखा जाएगा तो पाकिस्तान इस वाकयात से गैर मुताल्लिक नहीं रह सकती। इनका कहना था कि कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मजालिम के खिलाफ आलमी ज़मीर को बेदार किया जाए। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अहमद अली सिद्दीकी ने वॉक के शुरका से मुखातिब होकर कहा कि जब कौमें इस तरह बेदार होती हैं तो इनका रास्ता नहीं रोका जा सकता। भारत के पास अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि तारीख की कुव्वतों के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम करे। आखिर में डिप्टी दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भर में भी कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती और भारतीय जारहियत के खिलाफ यौम सयाह मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में महकमा इंफॉर्मेशन और आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज का दिन पूरी कौम भारतीय जारहियत के खिलाफ कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती और भारतीय जारहियत के खिलाफ यौम स्याह के तौर पर मना रही है। इस सिलसिले में महकमा इंफॉर्मेशन और आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने खसूसी शिरकत की। तकरीब के आगाज में कश्मीरी जद्दोजहद के सिलसिले में खसूसी पेंटिंग की नुमाइश भी की गई। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि हमारा दुनिया को वाज़ेह पैगाम है कि भारत ने कश्मीर का अमन तबाह किया है। दुनिया को कश्मीर और फलस्तीन के मसले की तरफ खसूसी तवज्जो देनी होगी। आज फलस्तीन में हस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की राय के मुताबिक उनको उनका हक देना होगा। ये महज एक जोग्राफियाई मसला नहीं, बल्कि ये दुनिया के अमन का मसला है। हम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम दुनिया को बताते हैं रहेंगे कि ये एक आलमी मसला है। तकरीब के एहतमाम पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की क़यादत में खसूसी रैली भी निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। और आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में अफसरान और एहलकारों की तरक्की का अमल जारी। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात एहलकारों को रैंक लगाने की तकरीब हुई। इन्वेस्टिगेशन अफसरान की खसूसी शिरकत SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद और SPCRO डॉक्टर रज़ा तनवीर ने कुर्बान अली, जुल्फ़िकार अली और मोहम्मद अमजद को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक लगाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए मुत्तहरिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कल से सियासी जलसों का आगाज करेगी। 28 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक जलसों का शेड्यूल जारी दिया गया। IPP कल जहानिया स्टेडियम में सियासी पावर शो करेगी। आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए मुत्तहरिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कल से सियासी जलसों का आगाज करेगी। 28 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक जलसों का शेड्यूल जारी किया गया। IPP कल जहानिया स्टेडियम में सियासी पावर शो पिंडाल की तैयारी का काम जारी। जलसे से जहांगीर खान तरीन, अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर फिरदौस आशिकान और दीगर खिताब करेंगे। कमिश्नर लाहौर DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा का मोहलन बाल स्कीम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद भी मौका पर मौजूद थे। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि कमिश्नर लाहौर DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा का मोहलन बाल स्कीम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा। चीफ इंजीनियर इसरार सईद भी मौका पर मौजूद थे। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि कमिश्नर लाहौर DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा का मोहलन बाल स्कीम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद भी मौका पर मौजूद थे। और आपको बताएं कि तलबा की अमली तरबियत के लिए पाक मिशन सोसाइटी और LWMC की मुश्तरका काविशें जारी। तलबा को
क्लाइमेट प्रोटेक्शन और सेफ्टी के बारे में अमली तरबियत देने के लिए 10 स्कूलों में ग्रीन क्लब कायम कर दिया गया। ग्रीन क्लब के 90 से ज़ायद तलबा और साथिज़ा का LWMC कंपोस्ट प्लांट का मुतालियाती दौरा भी करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा एक्साइज के ETOs मियां आफ्ताब रहीम और इकराम नियाज़ी की क़यादत में फ़लस्तीन और भारत में मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुलाज़िमीन ने भरपूर शिरकत की। ETO मियां आफ्ताब रहीम ने जोश जज्बे से इसराइल और भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की। महकमा एक्साइज के ETOs मियां आफ्ताब रहीम और इकराम नियाज़ी की क़यादत में फ़लस्तीन और भारत में मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुलाज़िमीन ने भरपूर तौर पर शिरकत भी की। नाज़रीन, दूसरी जानिब रेलवे के हज़ारों मुलाज़िमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर काम बंद कर दिया है। कराची से लाहौर आने वाली बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन को रोक लिया गया। मुलाज़िमीन की तरफ से मजीद ट्रेनों को रोकने का भी खदशा है, जिससे ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर हो सकता है। लोको शेड में काम करने वाले सैकड़ों रेलवे मुलाज़िमीन के एहतजाज का दायरा फैल चुका है। PHA और निजी फास्ट फूड चीन के ताउन से जलानी पार्क में शजरकारी तकरीब का इनेकाल स्मोक के खात्मे और सेहतमंद माहौल के लिए निजी फास्ट फूड चीन ने PHA को 10 लाख पौधे फराहम किए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA लाहौर सफ़ीउल्लाह गौंदर, डायरेक्टर मार्केटिंग PHA आमिर इब्राहिम, चीफ मार्केटिंग अफीसर रजा अली और मियां ताहिर जावेद ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर और DG LTA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर कार्रवाई। डायरेक्ट हाउसिंग 7 मौज़िम रशीद की सरबराही में स्टेट ऑफिसर शाहजहां और इंस्पेक्टर मलिक जुल्फ़िकार का एक्शन। ब्लॉक A1 में एक केनाल का प्लाट नंबर 100 जिसकी मालियत तकरीबन 7 करोड़ और उनमें से एक केनाल जिसकी मालियत J3 ब्लॉक तकरीबन 15 करोड़ रुपए है, कब्जा माफिया से बागुजार करवा लिया गया है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।